ਬਜ਼ਰੀਆ ਇਲਹਾਮ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹੀ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਹਾਮ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਬਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਇਸਤਦਲਾਲ ਤੇ ਦੱਸੋ ਇਸ ਆਇਤ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਦੱਸਣਾ ਇਸਤਦਲਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਬੋਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਜੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਐਕਟਰ ਦਿਲ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, अस्सलाम वालेकुम सर, जी ਕੀ ਹਾਲ अस्सलाम ਤੁਹਾਡਾ? वालेकुम। अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। ਮੈਂ बल्कि ਤੁਹਾਡੀ मोहम्मद भाई ਬੜੀ आ ਇੱਜ਼ਤ गए। ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਲਾਉਡ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੱਟ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੀ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਅੱਛਾ, ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਨੇ ਬਈ ਉਹ ਦਮਿਸ਼ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਭੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਸੂਰ। ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਆਪਸ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ ਕੋਈ? ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਕਦ ਇੱਕ ਖਲਤ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਦੱਸ ਜੇ, ਦਿਓ ਨਾ। ਅਦੀਲ ਬਰਲਿਨ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਅਦੀਲ ਬਰਲਿਨ ਆ, ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ? ਮੈਂ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਜੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਅਹਿਮਦੀ ਨੂੰ। मान गया। मेरा मशवरा है कि मैं उतरता हूँ नीचे और दूसरी ब्रॉड पे मैंने दमिश्की को देखा था, वहां जाके मैं इनवाइट करके आऊँ। हाँ आए आए नहीं आए, नहीं क्लाउड साहब, मैं क्लाउड देखता साहब, हूं। मदद पहले करो, कद खलत का मदद मतलब तो करो। दस दो कि राजा बड़ी साहब, छाड़ उम्मत दो, को कद कद खिलाफ खलत का मतलब ही कोई नहीं। ਕਰਾਂ ਦੇ अदीब ਕਰਾਂ ਦੇ साहब ਕਦ बताते ਖਿਲਾਫ हैं, ਦਾ अदीब वसीम साहब भाई मैं बताते हैं। आपको मैं ਪਹਿਲਾਂ वसीम भाई ਦਮਿਸ਼ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ अभी ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ ਭਾਈ, ਦਮਿਸ਼ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ वो अभी लेके बात आते कर हैं, रहे अदीब साहब बताते हैं। इस टॉपिक पे मैं आपसे बात कर लूंगा शाम को, शाहजी की ब्रॉड पे कर लेंगे, अपनी ब्रॉड पे कर लेंगे, कोई नहीं बात तो ये नहीं। अभी हो जाती ਤੇ है ना ਇੱਥੇ कुछ ਕੀ देर ਗੱਲ ਹੈ? तक, ਇੱਥੇ अभी ਇੱਥੇ हो ਤੁਹਾਨੂੰ जाती ਕੋਈ है ना। बदतमीजी मैंने कहा कर रहा अभी है वो या अभी कोई वो गाली आए हैं। दे रहा है या कोई नहीं, आपसे नहीं। कोई बहस है, हमने तो वही सवाल रखना है ना। वसीम अब क्या भाई, मसला है वसीम कि भाई, जी हम आमिर- बाद में करेंगे। मैं अपना मौका इसलिए छोड़ रहा हूँ कि आमिर भाई आए हैं तो उनकी बात कर ले, मैं भाई आपसे बात आमिर, मैं तो कहता हूँ आमिर भाई इसका जवाब दें। हाँ दें 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 दें, जरूर दें जी। ਜਾਂਦੇ अब ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ बताइए। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਲੱਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਆ ਉਧਰੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਢਾ ਕੇ ਸਮੀਰ ਭਾਈ ਵੀ ਨੀਚੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮੀਰ ਬੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਉੱਤੇ ਲੈ ਹੁੰਦਾ ਲਓ। ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰ ਦੇਖੋ ਲਵੋ। ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਸਕਨੇ ਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਗੱਲ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਥੋੜਾ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਵਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੰਮ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਗੱਲ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਇਲਹਾਮ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਲਹਾਮ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਨੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਅਰਬੀ ਚ ਨਾ, ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਰਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ, ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ, ਤਫਸੀਰ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਰਹ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਬਜ਼ਰੀਆ ਇਲਹਾਮ। ਵਰਨਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ, ਲੁਗਤ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ, ਲਿਸਾਨੁਲ ਅਰਬ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੁਫੱਸਰੀਨ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਇਲਹਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁਣੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮਾਨੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਲਹਾਮ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੈ ਇਲਹਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਨਾ ਨਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अच्छा आमिर भाई, वो सब लगे जो दमिश्की दमिश्की सब दमिश्की वहाँ बैठा हुआ है मरवान की ब्रॉड पे, तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया और उसको मैंने बुलाया, तो अब वो लोग जो है ना आए वाएं शाएं कर रहे हैं, तो हम यहाँ फिर भी वेट कर लेते हैं। वो दोनों वहीं बैठे हुए हैं और वो बस आपस में जो है ना वो कह रहे हैं कि 30 मिनट का बोल के गए तो आए क्यों नहीं। मैंने कहा भाई वो आ गए हैं, आ जाओ जल्दी से। तो वो बस अब इसी पे लगे हुए हैं कि 30 मिनट का बोल के गए तो 30 से ऊपर मिनट क्यों हो गए। नहीं ये ऐसे कहे तो फिर 2 नंबरी की है उन्हें, ये ऐसे नहीं उन्हें करना चाहिए, ये गलत मैं बात है। रिकॉर्डिंग करके आया, मैं रिकॉर्डिंग बात करके आया यहाँ ना। हुई नहीं कि आधे घंटे की या घंटे की बात हुई है कि हम लेने जो जा रहे हैं वीडियो, तो मैं आता हूँ लेके, उन्हें चाहे 2 मिनट का है या आधा मिनट का है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेके आ गए, बात खत्म। चीज मुहैयर है, जब चीज है तो आगे बात करें। चले अपना अदील साहब वो जब आते हैं ना, समीर लेकिन जी समीर आप हमने- जाओ उनकी ब्राड पे, उनको लेके आओ। हमने- इस ब्राड पे बात हुई हमने है। किसी के कोई चीज पूछी नहीं है, हमने किसी से कोई चीज पूछी नहीं है कि आप इल्हाम को साबित करो। हमने तो सिर्फ ये पूछा है भाई कि 1400 साल में उम्मत जो भी मायने करती रही है इस आयत के, वो हमें बता दें, ताकि हमें पता तो चले कि उम्मत का मौकफ है क्या इस आयत पे। मैंने हाँ, तो अभी उम्मत इसके ऊपर कोई 1400 बहस की नहीं। हाँ करते हैं उम्मत ठीक है, 1400 यानी साल से जो कि इसका मतलब ये है कि किसी के पास इसका जवाब है ही नहीं। अच्छा सिर्फ एक मिनट हमें आमिर भाई। एतराज बड़े अच्छे निकालने आते हैं, बातें बड़ी घुमानी आती हैं, बनानी आती हैं, लेकिन हमारे पास जवाब नहीं है।
जट साहब ये माजरत प्ले के कर रहा हूँ साथ। मैं, सुन लीजिए जट साहब, ये प्ले कर रहा हूँ मैं। आपको आमिर नजीर साहब बुला रहे हैं। देखे वो आएंगे तो फिर प्ले करें, फायदा हाँ जी, अपना क्लाउड साहब जब वो आएंगे ना तो ऐसे फिर मैंने सब बातें आपको सुनने इकट्ठी तो कर दें, लेंगे। सुनने तो दें, नहीं सुनने देखे तो दें। सामने 500 सामने यूरो का भाई, मसला है। जब आप आए हो ना आमिर साहब, यार जब गल आप आए सुनो हो तो मेरी, की कुरान करन की डे हो, गल सुनो मेरी। आमिर साहब गल पता की है, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਜ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੇਡੋ। ਕੱਲਿਆਂ ਕੱਲਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ हाँ ਚਲੋ जी। ਮੈਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰ आमिर ਲੈਣ भाई, ਦਿਓ, ਇੱਕ आमिर ਮੈਨੂੰ भाई ਐਲਾਨ मेरे ਕਰ पास, ਲੈਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। आमिर भाई मेरे पास ठीक है। जाहिद भाई का नंबर नहीं है, मैं आपको ये फॉरवर्ड करता हूँ, आप जाहिद भाई को फॉरवर्ड करके ना इसको प्रिपेयर कर लें अपने जी, ठीक है ना। मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि हाँ वो जी। लोग क्या कह रहे हैं, ठीक जी है। जी आपको ਠੀਕ ਉਹ ਭਾਈ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ, ਕਦ ਖਲਤ ਵਾਲੀ ਆਇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਜੋ। ਕਰਨੇ ਆ ਕਦ ਉਮਤ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕਰਨੇ ਆ। वसीम साहब एक गल कर लें दो, जितने भी मुसलमान यहाँ नजर आ रहे हैं ना, ऊपर भी और नीचे भी, वो सारे वो अबू दमिश्की साहब बैठे हुए हैं अबू जाफर अल हिंदी की ब्राड पे लगा के। वो वहाँ इसलिए बैठे हुए हैं कि वहाँ से वो बाहर अब आना नहीं चाहते। उन्होंने वहाँ कोई सोच लिया होगा कि वसीम क्या नाम है इनका, जट साहब की ब्राड पर जाएंगे तो हम तो फंसे हुए हैं बात में। तो आप सारे मुसलमान बारी बारी उनकी ब्राड पे चढ़ के, जिस तरह राजा साहब ने वो शब खून मारा है, उनकी ब्राड पे चढ़ के उनको कहें कि आपकी जमात अहमदिया की ब्राड लगी हुई है, जट साहब ब्राड लगा के बैठे हुए हैं, अदील बरलन जट साहब वो बुला रहे हैं, वो कह रहे हैं इधर आके जहां बात शुरू की है आके ख़त्म करें। उधर क्यों बैठे हुए हैं? हमने कोई आधा घंटा 20 मिनट 30 मिनट का तो नहीं, हमने कहा भाई आधे के घंटे बाद तकरीबन आ जाते हैं, फारग हो कितनी देर में वो भी मिल जाती है वीडियो। हम वो वीडियो लेकर आ गए हैं जिसमें आपने 500 यूरो का वादा किया है, हम वो आपके सामने प्ले करते हैं और अपनी बात का पहरा देकर दिखाएं। अब दोनों जाके उधर इकट्ठे होकर बैठ गए हैं और किसी ने जाके मेरे ख्याल उनके कान में कह दिया कि ये तो निकलो निकलो, काम खराब हो जाएगा। तो सारे मुसलमान यहाँ से निकलें और उनको बुला के लाएं और उनको कहें जट साहब की ब्राड पर फैसला होगा। जहां बात शुरू हुई थी यहाँ ही बात शुरू हुई है, यहाँ ही बात खत्म होगी। हालांकि हम समीर साहब का भी कह सकते थे, लेकिन क्योंकि ये दोनों हमारे पीछे यहाँ आ गए, दमिश्की साहब भी और वो हिंदी साहब भी, तो इन्होंने यहाँ ही आके कहा कि भाई हमने वो चैलेंज किया था, कबूल करना है, ये करना है, वो करना। हमने कहा ठीक है। समीर साहब ने बताया कि इस बंदे ने कल रात को इनकी ब्राड पर वो चैलेंज दोहराया है और कहा है कि मैं 500 यूरो मूसा वाला मैं दूंगा, अगर आप हदीस को ज़ईफ साबित करोगे और सही हम साबित ना कर सके तो हम 500 यूरो देंगे। तो अब वो समीर साहब वाली वीडियो, उनके ब्रॉड की वीडियो, वो आगे हमने है जी, आगे है, डाउनलोड वो आगे करके है। आगे एक बंदा हाँ ले तो आ लिया। गया। तो आ जाए जी, दमिश्की साहब ऊपर आए जी। आ जाए जी, आ जाए, एक बंदा तो आ गया। आ जाए जनाब, ऊपर आ जाए। दमिश्की साहब तो नहीं, अबू चलो मरमान अपना साहब आमिर आए हैं। नजीर साहब, अगर अबू तुसी मरमान अपना साहब आए दूसरा ना, वादा ऊपर भी आए पूरा करो जनाब, आए ऊपर आए, बात करें हाँ जी। अपनी आके मुकम्मल। तो ਇਹ ਕਦ ਖਲਤ ਤੇ बात ਵੀ तो ਹੁਣ अब कुछ वो गल कर दमिश्की लो। साहब से होनी है ना, नहीं दोनों ही दमिश्की थे भाई, ना। वसीम साहब। दमिश्की मेरे कहने साहब का यार। मतलब ये है ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। अभी कहेंगे मैं हाजिर हूँ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 'ਚ ਗੱਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। जहाँ बताना है मुझे बता दीजिएगा। ਜੇ ਮਤਲਬ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ वसीम ਸਕਦੇ ਤੇ साहब, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। वसीम साहब है ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਬੜ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਲੈਣ ਇਹ ਦਿਓ। ਬੰਦਾ 100 ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ 100 ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਸੁਣਨਾ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੁਣੋ, ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣ ਪੁੱਛੋ ਲਓ ਨਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਨਾ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਛੱਡੋ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ। ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। फैसला 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 ਫੈਸਲਾ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਨਾ ਬਰੌਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਸ਼ਰਤ ਲੱਗ ਗਈ ਏ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਹਾਂ, ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਸੁਣ ਨੇ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਬਰੌਡ ਥੱਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਉੱਤੇ ਆਏ ਲਿਖਣ ਜੇ, ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਜੀ, ਬਰੌਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਫੈਸਲਾ ਜੇ ਲਿਖੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਸੇਜ ਭਾਈ ਪੜੋ। ਕਦੀ ਇਮਰਾਨ ਵਸੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਲਤ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਕਹਿ ਬੰਦਿਆਂ ਰਿਹਾ ਦਾ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਖਲਤ ਪੜੋ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਵਸੀਮ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਸੀਮ ਠੀਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈ? ਥੱਲੇ ਤੇ ਪੜੋ ਮੈਸੇਜ, ਤੁਸੀਂ- ਬੰਦੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਉੱਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖੋ। ਆਏ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਆਏ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਇਤ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਹਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਚ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਦੌੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਦੋ ਤਰਫਾ ਮੈਚ ਖੇਡਣਾ, ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ।
लेकिन ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਹੋ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਮਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਦੋਵੇਂ ਜੇ ਤਰਫਾ ਖੇਡਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆ ਮੈਦਾਨ ਗਿਆ ਸਹੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਥੱਲੇ उर्दू में बात भाई और करें, जितो उन्हें बंदे समझ आए, वो मौजूद नहीं उर्दू तुसी वो speak गल है। क्यों करो वसीम साहब उर्दू में बात करें वो बंदा नीचे आ गया है आप म्यूट लगाएं उनको ऊपर आने नहीं ठीक है दें, आ गया ताकि है हमारी लेकिन जे ये आमिर साहब वसीम भाई नेक्स्ट म्यूट टाइम कर ना लो, जब खुदा के बाहर ना वास्ते ना होवे ते फिर गल नहीं करी दी मूंहों ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ वसीम भाई ਜਿਹੜੀ म्यूट ਪਹਿਲੀ कर ਗੱਲ लो। भी हुई है वो भी इस तरह ही इस होनी तरह है की बातें ना करें जे इस तो तरह की तुसी- बातें ना करें देखिए तरह की provoke अगर करने तो वाली बातें आपने ना इस करें। बात का जवाब देना है तो साबित होगा कि आप अपनी बातों में पक्के हैं देख लेंगे आपका इसका क्या मतलब सवाल है होगा मैंने कि कहा आप था अपनी आपका बात के फैसला। अभी 2 मिनट पहले की बात से आप फिर हमने गए अभी हैं। आपकी बात आपने पे कहा गौर कि ही मैं नहीं किया इस आप आयत क्या के कह ऊपर रहे हैं बात करूंगा मुझे एक ऐलान करने दें ओ भाई आयत पे भी बात कर लेंगे फिलहाल ठीक है, तो जो जरूरी आपने बात है कहा वो भाई, रहने हाँ, देना ये तो बात यानी कि- देखे ना अपना आमिर साहब ये बात दुरुस्त वो कर रहे हैं कि आपने कहा है कि मुझे मौका दे उस पे बात कर लेंगे मुझे हाँ। ऐलान करने दे आपने ऐलान कर लिया अब उनसे बात कर ले जितनी देर तक वो नहीं आते इसमें क्या दिक्कत क्या है क्या तो मुश्किल आप क्या तो है कह रहे थे वो नीचे आ नीचे आ गए, आप नीचे बता आके रहे थे। चले वो गए। आया था आगे चला गया अब मैं क्या करूं कोई नहीं ऊपर आता तो ये आपने पता नहीं क्या मसले मसाइल बनाए उसमें भला क्या है? जब बंदे जाट साहब, मौजूद ही जाट नहीं है साहब, तो फिर ना साहब, इंसाफी मसला है कि साडा- आप बोलते जाएं और वो यहाँ पे मौजूद नहीं है की तो मसला जो बन बात गया होगी उन्होंने पहले थल्ले उसका आके जवाब क्यों दे दें आप। चले गए ने यार उन्हीं ने चले कहा आके था क्यों कि चले गए? वीडियो प्ले करे वसीम साहब ये गलत बात ना करे जब उनने कहा वीडियो तो वीडियो लेके आए तो वो अब कहाँ गया है बंदा हाँ हाँ वो हो सकता है किसी को उसका काम है ना मसरूफियत इधर हो आना अब हाँ अब जी, नहीं, अगर वो वो ठीक है ना, आके उनकी हम चले गए हैं मसरूफियत हो तो सकती है, क्या हम बाद हम में वो सुन और यार नहीं कर क्लाउड सकते? साहब क्या यार क्लाउड साहब को चुप कराए अपना अमर साहब राज साहब आप म्यूट रखें वो बात जट साहब सही कह रहे हैं कि वो बंदा क्यों नहीं आ रहा वो क्यों जाके छुप गया है वो दमिश्क के बारे में मिर्जा साहब ने बताया है कि दमिश्क यजीद की तख्तगा देखो जी है अपना अदील देखें साहब मिर्जा साहब और को ना का- करें बात ए देखिए जी उनसे करें ए कुरान तो मैं दमिश्क की बात करने आयत लगा, तो नसन दी कोशिश जे दमिश्क 2 मिनट पहले एक यजीद बंदा की गल करदा तख्तगा कि है। मैनू ऐलान भाई करन बात- दियो वसीम साहब, मैं गल वसीम साहब बात करांगा करने मैं तो देखो तो 2 वसीम मिनट साहब बात बाद वो करने बंदा दें। अपनी गल नहीं पूरी कर पा रहा यार तुसी वसीम साहब उम्मीद कर रखते हो लेते कि हैं और 6 यार दिन वसीम पुरानी साहब- गल पूरी करेगा हमारा केस ज्यादा जरूरी है यार आप तो रोज ही भाई ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ आपका कुरान से लेना देना ही कोई नहीं वसीम साहब और भाई आपके ठीक फिर घर में गल क्यों कुरान की जैसा- थी नहीं तो फिर क्यों आपके क्या घर सी में कि मैं कुरान करांगा जैसा इल्हाम फिर नाज़िल पहले हुआ है झूठ उस क्यों पे कर बोल लेंगे रहा? बात अच्छा एक अब मिनट इलाम पे अदील बात साहब कर लेंगे। देखो एक मिनट देखो एक मिनट क्यों खाम खा माहौल खराब कर एक मिनट मैंने म्यूट किया दोनों को देखे वसीम साहब भी ये बात कहेंगे आपको कि आपका कुरान का लेना देना नहीं है तो आप उन्हें कहेंगे कि आपका कुरान से लेना देना नहीं है ये तो बात फिर डबल माइंडेड हो जाएगी म्यूट खोल ले अब करे बात लेकिन ऐसी बात ना करेंगे जो लेकिन देखिए अदील साहब अदील साहब मेरी बात सुने ये कुरान से जो सवाल हम पे करना है हम पे कर लें मैं इन पर इनके इल्हाम से सवाल करूंगा इन्होंने उसका जवाब देना है दो तरफ के लेंगे ठीक है तो भाई मैं जैसे नहीं, पहले ये एक आप- ये कुरान आप के जो वो बात करेंगे तो वो फिर आपके ये बाबों बात की ना किताबें इनको खोल चाहिए लेंगे, थी कि फिर पहले क्या करनी होगा? फिर लड़ाई कि होगी, मैं फिर बात का होगा। जवाब दूंगा तब आप मेरी बात का भी जवाब देना वही जब हमने आप- आते ही कहा जब कि आपने कुरान- यार देखो ना कुरान मेरे जैसा बात तो पूरी कलाम करने आपके दिया घर करो, में आप इस नाज़िल तरह हुआ। ना करो कि दरमियान में बोलो ठीक है अच्छा कर लें पूरी बात कर लें जब आप ये कहते हो कि आप हमारा ताल्लुक नहीं है तो फिर आपने वो बात क्यों कही कि जी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूं हाँ फिर आपने मैं झूठ बता- बोला हमसे यानी कि आप इस कदर झूठ भी बोल सकते हैं कि 2 मिनट पहले कहें मैं बताऊंगा और 2 मिनट बाद पूछा जाए आप कहें कि ताल्लुक नहीं है नहीं वो तो फिर बताते आपने वो हैं बात ऐसे क्यों ना कही? करे तो ऐसे ना करे बताते हैं क्या हो गया यार क्यों ऐसे कर रहे हैं प्यार से मोहब्बत से अच्छा आप मतलब म्यूट देखे करें। ना मैंने देखे ना जट साहब म्यूट मैंने करें, तो सुन ली बात अब। जो बात उनके मुंह से निकली है मैंने वही कहा कि भाई आपने कहा यार कि मैं आपको थोड़ी देर तक ऐलान करने दो मैं बात बताता हूँ नहीं करने दे रहे बात तो करने दे जब आप बात कर लेते चुप कर लिया करे म्यूट लगा लिया करे दूसरे की भी बात सुना करे हाँ जी तो मुझे उसका गुजारिश। मतलब बता दे भाई मैं तो आप सिंपल म्यूट सी एक लगाए ना, बात दूसरे कह की रहा भी हूँ, बात थोड़ी देर सुने। पहले कही है और दर्द दिल भाई वही देखें बात कलूद कर रहे सरफर हैं। साहब से बात हो रही थी आमर नजीर ने आके खुद बोला है कि मैं बात करता हूँ और सर हम जिस हाँ, मसले में मैंने बात बात करने आए वो बात हो गई है अभी वो बंदा नहीं आ रहा नहीं वो अब कुरान अभी वो जब आपने आ जाएंगे बात तो उनसे कर बात हो ली है। जाएगी अब देखे ना आप आपने अकेले बात बैठ के कर ली उनके तो ऊपर म्यूट इधर करे ना जवाब तो ले इल्जाम तराशी तो नहीं ना जवाब कर ले। सकते यहाँ पे बैठ के अच्छा आप उनके यार, ऊपर एक जवाब तो आप ले दोनों यार म्यूट म्यूट करो। करके जवाब आप दोनों म्यूट करो जी नजीर साहब और आमिर साहब आप करें बात हाँ जी गुजारिश ये है जट साहब कि मैंने कहा कि कुरान करीम के बारे में इनका जो भी अश्काल होगा जो भी एतराज़ होगा जो भी सवाल होगा वो हम जवाब देंगे लेकिन हम इन पर इनके इल्हाम पर सवाल करेंगे
क्योंकि मिर्ज़ा साहब का दावा है कि जो कलाम मेरे पर नाजल होता है, जो इल्हामात मेरे पर नाजल होते हैं, इन पर मैं ऐसे ही ईमान लाया हूँ जैसे कुरान पर, तौरात पर, इंजील पर, ज़बूर पर। अब हमारे कुरान पर इनका कोई एतराज़ है, सवाल है, ये करें, मैं जवाब दे दूंगा। लेकिन जो मेरा सवाल है इसका जवाब इन्होंने देना है। मैं पहले रख देता हूँ, मिर्ज़ा साहब का इल्हाम है कल्ब यमूत अला कल्ब, कुत्ता है कुत्ते की आदत पर मरेगा। इसका इन्होंने जवाब देना है कि ये इल्हाम मिर्ज़ा साहब का, इसके बारे में बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब जब 1941 में 52 साल, क्योंकि कुत्ते के अदद होते हैं 52, तो जब वो 52 साल के होने लगे तो इनके चौधरी ज़फ़रुल्लाह साहब क्यों दुआएं करवा रहे थे कि दुआ करो सारे दब के कि ये 52 साल का जो अदद है ये गुजर जाए, और खलीफा साहब की उम्र की दराजी के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए दुआएं करो, बिलखसूस 12 जनवरी 1941 तक, क्योंकि उनकी तारीख पैदाइश है 12 जनवरी 1899 1889। तो उन्होंने कहा कि 1941 की 12 जनवरी तक जोर से दुआ करो कि ये जिंदा रहें, क्योंकि 52 का हिंसा मिर्ज़ा साहब का है इल्हाम, कुत्ता है कुत्ते की आदत पर मरेगा। तो ये है मेरा सवाल कि वो इल्हाम जो मिर्ज़ा साहब का था, वो चौधरी ज़फ़रुल्लाह साहब को क्यों फिक्र पड़ी हुई थी कि इनकी उम्र 52 साल से ऊपर हो जाए, 53 में दाखिल हो जाए, ये क्या मसला बना हुआ था? इसका जवाब इन्होंने देना है। मेरे पर सवाल करें कुरान पाक के बारे में, जो भी कद खलात का करना है, तवफ़ा का करना है, वो सवाल करें, मैं जवाब दे दूंगा जी। नहीं, उनने तो सवाल आपको किया हुआ है ना, वो तो जवाब देखें आपको जी मिलेगी अदील ना। साहब, ना इंसाफी देखें, हम बोले नहीं है। अब ये देखें कि पहले से एक आयत डिस्कस हो रही थी, इनके मुसलमान भाई कभी किसी रसूल को गुजार रहे हैं, कभी रसूल की शख्सियत को वफात दे रहे हैं, कभी कहते गुजर जाने का मतलब हमें पता ही नहीं है, कभी कहते हैं हजरत ईसा भी गुजरने में शामिल है, कभी कहते हैं कि नहीं है। भाई मैंने तो सिंपल सा सवाल ये किया था, ना तो कोई हमारा मुनाजरा हो रहा था, ना हमारी चीज हो रही थी। एक बंदा आके माइक पकड़ता है, कहता जी मैं 2 मिनट के बाद मुझे ऐलान करने तो मैं जवाब दूंगा, और जब जवाब देने की बारी आई तो कहता जी आपके कुरान का तल्लक ही नहीं है। तो यानी कि आप अपनी बात में इस कदर भी फिर सकते हो यार। तो फिर आपने सिर्फ माइक लेना था, तो आप कहो कि भाई मैं आपसे बात नहीं कर सकता, मेरे पास भी इसका जवाब नहीं है, माजरत के साथ आप किसी और से बात कीजिएगा, मैं कोई और बात करने आया हूं। मैं आपकी बात में शामिल ही नहीं होता, मैं इनको मुखातब ही ना करता। मैं कहता हूँ ठीक है यार, एक बंदा अपने मसले के लिए आया है और अपना मसला हल करके चला जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि देखें, एतराज करते हुए कितनी लंबी इन्होंने बात की, ठीक है ना, कि जी इल्हाम के ऊपर ये एतराज था, ये एतराज था। काश के ये कुरान के ऊपर भी ये उस तरह से जवाब देते कि जी जो सूरह आले इमरान की आयत 144 है उसका मतलब है क्या। हमने तो सिंपल पूछा भाई, आप कहते हो आपका इजमा है 1400 साल से है, हमने तो बहस की नहीं, हमने तो सिंपल पूछा है उस आयत का मतलब है क्या, बस। इससे ज्यादा ना तो हमने कोई मुनाजरा रखा, ना कोई डिमांड रखी, किसी का कोई वर्जन जानना। उसके ऊपर ये बातें होती हैं कि आपका कुरान से ताल्लुक नहीं है, मुझे 2 मिनट का मौका दें। यानी कि 2 मिनट पहले आप इस कदर झूठ बोलोगे और अपनी बात से फिर जाओगे। जो 6 दिन पहले बात हुई है यार, आपसे कौन बात करेगा? कैसे कोई आपकी बात पे यकीन करेगा कि 2 मिनट पहले एक बंदा कहता है मुझे सिर्फ एक ऐलान करने दो, मैं मुजाहिद बन के तुम्हारी बात का जवाब दूंगा, और उसके बाद जवाब देखें ये मिल रहा है आपको। तो आप किस तरह से ऐसे लोगों पे बिलीव कर सकते हो कि तो वो फिर लोग ऐसे आपको जवाब लोगों से देंगे? पंगे क्यों लेते हो आप लोग? पंगे उनने क्यों हाँ, लिए हैं ऐसे लोगों से? मतलब क्यों आप पंगा दरमियान लेते में हैं आए वो? ही क्यों हो भाई? वो एक बंदा जवाब दे रहा है, आप चौधरी बन के आए हो, मुझे ऐलान करने दो, मैं जवाब दूंगा जी आपको। तो भी फिर चौधरी बनना था तो फिर पूरा बनना था यार। इससे अच्छा तो वो जवाब दे रहा था जो कम से कम एक इंसानियत के नाते वो बता तो रहा था, बेशक उसको भी समझ नहीं है, लेकिन आप कम से कम कुछ जवाब तो देते कि शायद का ये मतलब है। ठीक है, आप हम और पूछे, हम आपको और बताते हैं, और ऊपर से आगे देखो ये बातें करना शुरू कर दी हैं। तो अदील साहब, अगर आप इंसाफ के साथ चलाना चाहते हैं ना, तो जो बात इन्होंने कही है ना कि 2 मिनट पहले मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, नहीं तो भाई देखे, ये उनने फिर वीडियो मांगी है, उनने कहा है कि जी वीडियो जो है ना लेके आओ। वो लेके आए तो अब वो कहाँ चले गए हैं? हाँ हाँ अदील साहब देखे ना, मैंने कैसे तो आपसे लोग हैं पहले यार कहा। ये? यार आपके 9 नंबर म्यूट करे, एक ऐसे नहीं होता। हाँ जी अदील भाई, बात जहाँ बता कोई क्या है? बात दावा नहीं करते, जो दावा करते हैं तो उसे पूरा करते हैं। यार क्लाउड भाई क्या कर रहे हो यार? ये फजूल हरकत है। हाँ जी, बात भी अपना मैं बता मुझे क्या कर है? टाइम रहा दे, हूँ, आप लोगों की बात कर रहा हूँ, तो आप पीछे नीचे लिखी जा रहे हैं। क्या लिख रहे हैं इसे? ना लिखे ना लिखे ना लिखे, 1 मिनट रुक जाएं। बात कर और रहा जो हूँ मैं, बात आप जब लोगों और की बात ऊपर कर से रहा हूँ। अदील भाई बात भला क्या है, 2 घंटे मैं रास्ते में
सुनता रहा हूँ। जब ये दूसरे से बात कर रहे थे मैं बिल्कुल माइक खोल के बोला नहीं, हालांकि हर किसी का दिल करता है। हाँ जी, उस वक्त मौजू वो था, मैंने मौजू को नहीं चेंज किया। जब हम एक कुरान की आयत के ऊपर बात कर रहे हैं, एक मौजू के ऊपर बात हो भाई रही जो है। वीडियो का उनने कहा कि हम लेके आते हैं, वो लेके अब आए हैं, तो वो कहाँ गया है वो बंदा? हाँ जहाँ हाँ आके गिल ये साहब, वही बातें तो आपको कह रहा हूँ कि वो बंदा आ जाए तो मैं चुप कर जाऊंगा, लेकिन उतनी देर तो बंदा अपना वादा पूरा करे कि मैं जवाब दूंगा। जैसे ही वो आए, अब वो हो सकता है उसकी मसरूफियत हो, 10 मिनट के बाद आ जाए, तो कम वो से कम पता 10 नहीं, मिनट वो तक उस ब्रांड आयत का लगा के मतलब तो बैठे बता हुए दें हैं हमें। मसरूफियत के। ये सारे बंदे कह रहे हैं कि वो ब्रांड लगा के बैठे हैं। जट भाई वो थोड़े, इन्होंने आधे घंटे का कहा था ना, वो अभी थोड़े बिजी है, मैंने उनको करता हूँ, मैं जाके बुलाता हूँ मैं उनको। लेकिन हाँ हो जो सकता है ना, टॉपिक वो अभी तो हमें कुरान पता की ही नहीं आयत पे कहाँ है चल रहा कहाँ है, नहीं ऐसे है। उस पे नहीं तो बात होता, कर अपना लेना। फिर अपनी बातें करके तो फिराना करें। हाँ जी। तो अब आमिर साहब से भी ये कहे कि जो 2 मिनट पहले इन्होंने कहा था ना कि मैं इस आयत का मतलब बताऊंगा, वो उस आयत का मतलब बताएं हमें सिर्फ। हम इनसे दरखास्त करते हैं, या इनका कोई और भाई क्लाउड सर्फर साहब दोबारा बता दें, क्योंकि उनसे बात चल रही थी, ये तो दरमियान में आए हैं, अभी भी ये निकल सकते हैं, मुझे कोई अच्छा एतराज नहीं। एक मिनट, अपना ये भाई ना बड़ा गुस्से से में है जी। हाँ जी भाई, करे बात, क्या कहना चाहते हैं आप? खोले म्यूट, खोले म्यूट, तो बताएं क्या कहना चाहते हैं। आपको बड़ी स्क्रीन पे किया गया है। नहीं मैं कहना चाह रहा हूँ, जो कोई बंदा मौजूद नहीं है वो गल अच्छा कर चल गया। अगर वो बंदा मौजूद नहीं है तो अच्छा ਹੁਣ तो जो बंदे को वसीम साहब ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਨੇ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਫਲਾਣੀ ਅੱਛਾ ਆਇਤ ਤਰਜਮਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਮੋਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ਰ ਇੱਕ ਭਾਈ, ਮਿੰਟ, ਯੂਜ਼ਰ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਬਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਰ ਆ ਟਪਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ? ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਹੋਸਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸਟ ਬਣ मैं एक कमेंट करना चाहता जज साहब। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸਟ ਹੋਸਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਾਰ ਚਲਾਵੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਸਟ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸਟ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ, ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਵੋ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਚਲਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਮੌਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਣਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤਰੀਕਾ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਉੱਚ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੋਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਤੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਗਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜੀ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਇੱਥੇ? ਅੱਛਾ, ਗਾਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਢੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਗਾਲ ਕਿਨੇ ਕੱਢੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਆਪਣਾ ਸੈਫੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਗਾਲ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਟਾਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਮੀਰ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਯਾਰ। ਉੱਥੇ 100-200 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। 100-200 ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ 125 ਬੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਮੀਰ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਵਾਪਸ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੈਣ ਗਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੁਲਾਣ ਹੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੁਲਾਣ ਗਿਆ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸੋੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿਓ। ਦਿਓ ਜੀ, ਦੇ ਦਿਓ। म्यूट लाओ जरा अपना वसीम साहब। तो गुजारिश ये है कि मैंने आपको कहा कि आपको कुरान की जिस आयत पर कोई इतराज़ है, अशकाल है, सवाल है, आप करें, हम उसका जवाब दे देंगे। बात क्या करनी है? वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, इस पे बात करनी है। इस पर आपका सवाल क्या है? सवाल पूछे, मैं जवाब दे देता हूँ। मैंने आपके सामने एक सवाल रखा है, मैंने आपके सामने एक सवाल रखा है कि मिर्ज़ा साहब का इल्हाम था कल्ब यमूत अला कल्ब, कुत्ता है कुत्ते की अदद पर मरेगा। वो मिर्ज़ा साहब का इल्हाम जिसमें उन्होंने बताया कि कुत्ते की अदद पर मरेगा, यानी 52 के अदद पर मरेगा। जब उसकी उम्र, खुद उन्होंने वजाहत किया है कि जब उसकी उम्र 52 के साल में दाखिल होगी तो अगला साल यानी 53 का चढ़ने से पहले 52 और 53 के बीच में मर जाएगा। तो वो मिर्ज़ा साहब का ये इल्हाम। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਮਰਨਾ? ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਹੀ ਮਰਨਾ ਵੇ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਮਰਨਾ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਹੋਏਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਯਾਰ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਸੂਰੇ ਆਲੇ ਇਮਰਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ।
2 ਦਫਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੀ ਸਵਾਲ ਸਿੰਪਲ ਕੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੀ ਸਵਾਲ? ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ ਆਇਤ ਦਾ? ਕਿਹੜੀ ਆਇਤ ਦਾ? ਸੂਰੇ ਆਲੇ ਇਮਰਾਨ ਦੀ 144 ਦੀ ਵਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇल्ला रसूल कद खलत मिन कबले रसूल वालिदा। ਹਾਂ मतलब ਕੀ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ। ਚੈੱਕ ਤੇ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਆਇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, 2 ਦਫਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ? ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ? ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਂਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ। ਵਮਾ ਮੁਹੰਮਦੁਨ ਇल्ला रसूल ਵਮਾ ਮੁਹੰਮਦੁਨ इल्ला रसूल कद खलत मिन कबलिहि रसूल। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰਸੂਲ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਈ ਰਸੂਲ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਆਫਾ ਮਾਤ ਆਓ ਕੁਤਲਨ ਕਲਬਤੁਮ ਅਲਾ ਕਾਬਿਕੁਮ, ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਏੜੀਆਂ ਦੇ ਬਲ ਫਿਰ ਜਾਓਗੇ? ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਚ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਮੈਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਈ ਰਸੂਲ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਈ ਰਸੂਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, 2 ਬਣਦੀਆਂ। ਦੋ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਜੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਜ਼ਾਹਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋਗੇ? ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ? ਲਾਣੇ ਆ ਜਨਾਬ, ਪਹਿਲੇ ਵਜ਼ਾਹਤ ਤੇ ਦੇ ਲਵੋ। ਅੱਜ ਜੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਿਓ। ਅੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਂ ਕੀਤੀ ਸਵਾਲ, ਮੈਂ ਮੁਤਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਤਮਨ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੁਤਮਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਣਾ। ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਜ਼ਾਹਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਵਜ਼ਾਹਤ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ 10 ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗੋ ਦੇ ਮੈਂ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਉਸ ਸਵਾਲ ਚ ਡਰੋ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਮ ਹੈ, ਅਜ਼ਾਲਾ ਹਾਮ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਦੀਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਤੂੰ 2 ਦਫਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਣ, ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਵੀ ਕਦ ਖਲਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਨਾ? ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਆ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਨਾ? ਕਦ ਖਲਤ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਕਦ ਖਲਤ ਮਿਨ ਕਬਲ ਰਸੂਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਰਸੂਲ ਕਈ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ? ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ। ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, ਕੰਮ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ। ਲੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦਾ ਵੀ ਦੋ ਕਲਾਉਡ ਸਰਫਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘੰਟਾ ਬਹਿਸ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਕੋ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਰੋਲਾ ਕਾਹਨੂੰ ਪਾਣ ਲੱਗ ਪਿਓ? भाई समीर आ गया। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਜਮਾ। ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈ ਤੇ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਏ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਏ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਟਾਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖਤਾਰਨਾਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣੋ ਸਹੀ ਨਾ, ਸਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ।
ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਾਈ, ਨਾ, ਹੱਲੇ- ਹੱਲੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦਾ ਭਾਈ, ਕਦ ਖਲਤ ਵਸੀਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਹਿਬ- ਹਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵਸੀਮ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ